Hariom children, welcome back in our computer class. In our today's computer class, what we are going to learn is lesson number 4, Advanced Features of Excel 2007. In today's class, what we are going to learn is some advanced features of Microsoft Excel 2007. These options are available in the latest versions of Excel also, but today what we are going to learn is from the software 2007. Now, our first point what we are going to learn today is data sorting, which is on the page number 43. Okay. Now, in data sorting, two things are there which we should know before we start doing it. Now, first is field, and the second one is record. What are the fields? What are the records? On our textbook, in our textbook, page number 43, one small instruction is given there, like the information represents horizontally along the row in a database is called record. Okay, जो इंफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टली हमें शो होती है हमारे डेटाबेस में, उससे हम बोलते हैं रिकॉर्ड. लाइक अभी यहाँ पे नंबर 1 रोहन, in Rohan's information, English subjects marks, math subjects marks, science subject marks, all the information related with Rohan, we can see all that information arranged in horizontally way. Okay, in the pattern of horizontal. यहाँ पे एक लाइन में हमें वो सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है. नाउ व्हाट अबाउट द फील्ड? ओके, रिकॉर्ड हमने सीख लिया ना. व्हाट इज फील्ड? Whereas the information displayed vertically along the column is called field. जो information horizontally show होती है वो रहती है हमारा record, and जो information हमें vertically show होती है those are the fields, like Rohan, Gautam, Ronit, Pratham, Abhishek. These are the field. Okay, जिनकी information हमें vertically show होती है. नाउ ये था हमारा रिकॉर्ड एंड फील्ड का शॉर्ट इंट्रोडक्शन. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू सी हाउ टू डू द डेटा सॉर्टिंग. आवर फर्स्ट practical in the fourth lesson, our today's first point which we are going to learn how to do it. Now for doing it, what we need to do is, first we will do one thing. हम लोग हमारा पूरा जो टेबल है उससे हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे. नाउ वी सिलेक्टेड our whole table. Now what we need to do is we need to go in this data tab. In the data tab we have one sort filter name group present here. यहाँ पे हमारे पास एक sort and filter name का एक ग्रुप है जिसमें हमें जाना है sort. ठीक है, from here we are going to sort our data. So click on it. One small pop-up window will show. Okay, यहाँ पे एक pop-up window आपको दिख रही है. It will come when we click on the sort type. अब हम क्या करेंगे? Here we need to do what we need to do here is simple. We are going to add some labels here. ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि वो settings उसकी कैसे करनी है. First we will do one thing. We will add the label. ठीक है, यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, सॉर्ट बाय कैसे करना है. ठीक है, सो वी विल डू द सॉर्ट बाय टोटल मार्क्स. ओके, वैल्यूज विल बी द सेम, एंड जो हमारा ये ऑर्डर रहेगा इसे हम कर देंगे फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे. नाउ अब हम ओके, नाउ दिस सेकेंड सेटिंग, लेट्स डू इट सिंपल, और इसे हम एक ही रखते हैं स्टार्टिंग में, फिर हम इसमें सेकंड जो है वो ऐड करेंगे. फर्स्ट हमने क्या किया, हमने एक लेवल ऐड की. ऑलराइट, हमने वो लेवल डिलीट कर दी. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर यूजिंग द लेवल विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर. यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से हमने एक फील्ड चूज की है अकॉर्डिंग टू विच वी वांट टू सॉर्ट आवर डेटा. इसमें हमने चूज किया है टोटल मार्क्स. ओके, इन द वैल्यूज में हमने यहाँ पे सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल आइकॉन कलर, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज यहाँ पर जिसके हिसाब से भी हम सॉर्ट कर सकते हैं, लाइक सेल नंबर, सेल कलर, सेल फॉन्ट कलर एंड सेल आइकॉन आल्सो, जिसमें से हमने चूज किया है वैल्यूज. एंड थर्ड ऑप्शन इज द ऑर्डर.
in which order we want to sort our data, जिसमें से हमने चूज किया है स्मॉलर टू लार्जेस्ट. ओके, now what we are going to do is we are going to just click on the OK button and let's see what will happen. Now as you can see in the total marks, smallest to largest ये सारा जो है वो अरेंज हो चुका है. ओके, the names are also got arranged similar with the sorting method. ठीक है, अब हम इसे चेंज करते हैं. हमने क्या किया था, डेटा टैब में गए थे, सॉर्ट बटन पे क्लिक किया था, देन सॉर्ट बाय टोटल मार्क्स था, हम लोग वो सेम रहने देते हैं, वैल्यूज भी सेम रहने देते हैं. ओनली अभी हम यहाँ पे चेंज क्या करेंगे, ऑर्डर. इन ऑर्डर वी आर गोइंग टू चेंज स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट था, हम उसे हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे और क्लिक कर देंगे ओके. नाउ एज यू कैन सी, अब देखो टोटल मार्क्स में जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग थे, लार्जेस्ट जिनका स्कोर था वो ऊपर शो हो रहा है, और उनसे फिर धीरे धीरे इन द डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा सारा जो डेटा है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है. ओके, नाउ इसके बाद हम जो क्या करेंगे, हम फिर से एक बार इसे सिलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, हमारा पूरा जो टेबल है इसे सिलेक्ट करके रखते हैं, गो इन द सॉर्ट बटन, देन हम यहाँ पे ऐड लेवल करेंगे. इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी लेवल यू कैन जस्ट सिलेक्ट दैट लेवल एंड डू द एंड देन क्लिक ऑन द डिलीट लेवल, इट विल गेट डिलीटेड. वी आर गोइंग टू ऐड वन लेवल. यहाँ पे देखो हमारा क्या था, कॉलम में सॉर्ट बाय था. ठीक है, और उसके बाद में ये हमारा फर्स्ट सॉर्ट जो थे कंडीशंस थी वो हमने अप्लाई की हुई है. नाउ वी आर गोइंग टू यूज द सेकेंड वन, देन बाय. फर्स्ट इज सॉर्ट बाय, सेकेंड वन इज देन बाय. ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अभी सॉर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेम. ठीक है, वैल्यूज हम सेम रहने देते हैं एंड ऑर्डर हम कर देते हैं A to Z. ओके, देन द नेक्स्ट देन बाय हम करेंगे टोटल मार्क्स, वैल्यूज सेम रहने देते हैं एंड यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सेम एज वी हैव इन अवर टेक्स्ट बुक. ठीक है, ऑन द पेज नंबर 44. नाउ अब हम क्या करेंगे, ओके करेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे क्या होता है. नाउ अकॉर्डिंग टू नेम यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है. ठीक है, एंड डेटा की अगर हम बात करें टोटल मार्क्स की, तो टोटल मार्क्स में यहाँ पे आपको जो हमारा देन बाय था वो ठीक से अप्लाई हुआ नहीं मिलेगा. वाई, बिकॉज हमारे पहले सॉर्ट बाय जो थी हमने वो कंडीशन क्या दी हुई थी, जस्ट मिनट हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं. सॉर्ट बाय की हमारी कंडीशन क्या थी कि सॉर्ट हमें करना है नेम वाइज और ऑर्डर हमें देना है A to Z. ओके, लेट्स चेंज, हम लोग सॉर्ट बाय चेंज करते हैं, टोटल मार्क्स और जो वैल्यू है वो सेम रहने देते हैं और इसको हम कर देते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. देन द नेम जो हमारा देन बाय है सेकंड वाला, उसको हम चेंज कर, उसमें अब हम रखेंगे नेम एंड Z टू जगह पे A to Z. ओके, अब हमारा सॉर्ट बाय जो फर्स्ट कमांड है हमारी वो है टोटल मार्क्स के हिसाब से वो सॉर्ट होना चाहिए एंड देन बाय. ओके, अब देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी. अब देखो हमने क्या किया था, सॉर्ट में हमने किया था, मैं एक बार बता देता हूँ फिर से, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया था. ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. तो देखो स्मॉलेस्ट ऊपर है और लार्जेस्ट नीचे है, मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमारा जो डेटा है टोटल मार्क्स के हिसाब से वो सेटिंग फर्स्ट अप्लाई हुई है. ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप लेयर्स ऐड भी करते हो तो फर्स्ट आपका जो रहेगा वो जो सॉर्ट बाय है उस हिसाब से सबसे पहले वो सिलेक्टेड होगा, उसके बाद में ही बाकी की जो चीज़ें हैं वो सॉर्टिंग मेथड्स में अप्लाई होगा. ओके, इसमें हम बाद में और सीखेंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है. अभी के लिए पहले हम सॉर्टिंग मेथड इतनी रहने देते हैं और इसके बाद वाले नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं विच इज़ द फिल्टरिंग डेटा. ओके, अभी हमने सीखा है सॉर्ट डेटा, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज फिल्टरिंग डेटा. ओके, सो फॉर डूइंग द फिल्टरिंग डेटा हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जाना होगा डेटा टैब में. ओके, इन द डेटा टैब वी आर गोइंग इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप. इसके अंदर इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस फिल्टर आइकॉन. आप यहाँ पे देख सकते हो फिल्टर. Okay, you just need to click here and then let's see what will happen. As you can see, after clicking on this filter button, it's got selected. You can see the orange background
behind this symbol. Now check our headings. All our headings are having this small triangular symbol box here. एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है जिसका ये बटन है स्क्वायर, जिसमें एक डाउनवर्ड ट्रायंगल जैसा एक सिंबल दिख रहा है आप सभी को. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक हियर. हम लोग टोटल मार्क्स पे आएंगे, क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन सी यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो इट विल शो वन ऑप्शन विंडो हियर, जिसमें आप सॉर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सॉर्ट बाय कलर. देन नंबर फिल्टर्स आर देयर, जहाँ से आप यहाँ पे नंबर फिल्टर्स में भी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो आप सिलेक्ट कर सकते हो. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट इज दिस. आपको यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ऑल सिलेक्टेड रहेगा, मीन्स सारी इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो आपकी यहाँ पे सिलेक्टेड है. नाउ इनमें से आपको किसकी इंफॉर्मेशन शो करनी है, किसकी नहीं करनी है. ओके, तो लाइक एक बार हम यहाँ पे नेम पे आते हैं. ठीक है, इन नेम वी आर गोइंग टू अनचेक दिस सिलेक्ट ऑल ऑप्शन. ठीक है, यहाँ पे हमने अनचेक कर दिया है इसे. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग मैन्युअली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे. ओके, सपोज वी आर गोइंग टू शो द रिजल्ट्स ऑफ अभिषेक. यहाँ पे हम मैन्युअली सेट कर सकते हैं कि हमें किसका रिकॉर्ड शो करना है और किसका रिकॉर्ड हमें शो नहीं करना है. ओके, सो वी आर सिलेक्टिंग अभिषेक, प्रथम एंड रोनित. ठीक है, एक बार काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स है हमारे पास में, जिसमें से हमें सिर्फ ये 3 शो करना है. ओके, आफ्टर चेकिंग these checking boxes in front of these names, we are going to click on the OK button. और जैसे ही हम OK पे क्लिक करेंगे यू कैन सी हमारा डेटा मॉडिफाइड हो चुका है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो वो कर रहा है ओनली उन 3 बच्चों की. ठीक है, अगर आपको फिर से आपका डेटा, आपका ये फिल्टरेशन मेथड जो है अगर ये निकाल दे रहा है, विच इज़ अवर थर्ड पॉइंट, सॉरी इसके बाद में हमारा एक और पॉइंट है, उसके बाद में रिमूवल का है. सो यूजर्स नीड टू डू वन सिंगल क्लिक हियर. इससे ये ऑफ हो जाएगा और हमारा जो फिल्टरेशन था वो यहाँ से निकल जाएगा. एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे सारे रिकॉर्ड जो है वो शो हो रहे हैं. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट, custom auto filter, which is also from the page number 46. okay, custom auto filter, ये क्या है? what you are going to do is go click on the filter button. फिर से फिल्टर अप्लाई हो जाएगा सभी चीज़ों के ऊपर. नाउ अब आप क्या करोगे, नेम पे आना है, यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर्स में आना है और कस्टम फिल्टर पे आपको क्लिक करना है. ओके, क्या करना है आपको, कस्टम फिल्टर्स पे आपको क्लिक करना है. देन यहाँ पे एक कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस है. अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन डू यूर सॉर्टिंग, जिससे आप आपकी जो कस्टम ऑटो फिल्टर है वो आप कर सकते हो. ये ऑटोमेटिकली फिल्टर करेगा, आपको सिर्फ इसे स्टार्टिंग में एक इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी. नाउ देखते हैं हमें क्या करना है. इज ग्रेटर दैन हम रखते हैं. ठीक है, सॉरी नेम का हम करेंगे बिगिन्स विथ. ठीक है, जिसका नाम बिगिन होता है कहाँ से, ए से. ठीक है, जिसका नाम ए से बिगिन होता है. और इसको हम यहाँ पे ऑप्शन जो एंड है वही रहने देते हैं. ठीक है, दूसरा ऑप्शन हम अभी फिल नहीं करते स्टार्टिंग में, हम 1 बाय 1 देखते हैं कैसे होता है. एंड जस्ट करते हैं क्लिक ओके पे. अब देखो जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा था बस उसी का डेटा यहाँ पे वो शो कर रहा है. ठीक है, फिर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर से टेक्स्ट फिल्टर्स पे आते हैं और आते हैं कस्टम फिल्टर पे. यहाँ पे हम ए की जगह कर देते हैं सपोज नाम नहीं लेंगे हम लोग, सपोज लेते हैं किसके किसके थे, सेम नंबर है रोहन एंड रोनित. सो हम लोग लेते हैं यहाँ पे आर. ओके, जिसका नाम स्टार्ट होता है आर से और करते हैं ओके पे टिक.
एज यू कैन सी फिर से अपडेट हो गया है। अब यहाँ पे दो नेम्स बता रहा है जिनकी स्टार्टिंग होती है आर से। ओके, नेक्स्ट अब हम वही सेम मेथड यूज करेंगे, बट हम लोग जो है वहाँ पे एक और ऑप्शन था नीचे, हमने एक ही यूज किया था। अब हम वो दूसरा कमांड जो है ये भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट किया था बिगिंस विथ। ठीक है, बिगिंस विथ में हम आर कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे दो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, आर से स्टार्ट होने वाली रोनित एंड रोहन। इसमें अब हम क्या करेंगे, बिगिंस विथ, नेम बिगिंस विथ आर, ऐसा नाम जो आर से स्टार्ट होता है एंड खत्म होता है, मीन्स एंड्स विथ। सिलेक्ट करेंगे बिगिंस विथ एंड एंड्स विथ। जो स्टार्ट होता है आर से एंड एंड होता है, अभी सपोज एंड यहाँ पे टी है और यहाँ पे एन है, तो हम यहाँ पे लेते हैं एन। ठीक है, जो स्टार्ट होता है आर से और जो एंड होता है एन पे आके। सो हम यहाँ पे ओके करते हैं। एज यू कैन सी हमारा डेटा अपडेट हो चुका है। ऐसा नाम हमें मिल गया है जो स्टार्ट होता है आर से और एंड होता है एन पे आके। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फिल्टरेशंस है, हम लोग यहाँ से फिल्टर निकाल देते हैं और फिर से सिलेक्ट करते हैं, जिससे हमारा डेटा फिर से वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा और हमारा फिल्टरेशन भी यहाँ पे बना रहेगा। नाउ अब हम आते हैं टोटल मार्क्स पे। ठीक है, टोटल मार्क्स पे अब आएंगे और यहाँ पे जाएंगे नंबर फिल्टर्स और फिर से जाएंगे हम कस्टम फिल्टर्स में। यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे हम इक्वल्स लेंगे, तो यहाँ पे हमारे इक्वल टोटल मार्क्स में तो किसी का पूरा है नहीं, हाँ है। ओके, इक्वल्स जाते हैं, इक्वल्स में लिख देते हैं हमारा यहाँ पे देखो 401 दो बच्चों के मार्क्स है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 401। हमारी सॉर्टिंग अब होगी इक्वल टर्म्स के ऊपर। ठीक है, कि किसके टोटल मार्क्स इक्वल है। ओके करते हैं। एज यू कैन सी देखो यहाँ पे हमारे दो बच्चों के मार्क्स इक्वल थे टोटल मार्क्स, तो उनका रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, फिर से हम जाएंगे टोटल मार्क्स पे, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, कस्टम फिल्टर में जाएंगे और इक्वल्स की जगह पे अब हम करेंगे इज ग्रेटर दैन। ठीक है, कि किसके मार्क्स ग्रेटर है किससे। सपोज सबसे कम है 331, सॉरी हम लोग लेते हैं 400 के अबो रखते हैं। ठीक है, 401 के अबो रखते हैं, जिसके भी मार्क्स 401 से अबो है उनका डेटा शो होगा। 401 से अबो सिर्फ एक का डेटा है। ठीक है, सो उसके मार्क्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑन करते हैं, फिर से जाएंगे नंबर फिल्टर्स में, फिर से जाएंगे कस्टम फिल्टर्स में। अब हम क्या करेंगे, ग्रेटर हमने देखा इज ग्रेटर दैन, अब हम क्या करेंगे इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू। ठीक है, फिर से हम वही लिखेंगे 401 कि जिसके मार्क्स 401 से ज़्यादा है या 401 है, मीन्स इक्वल है 401 के या फिर 401 के से ग्रेटर है। ऐसे रिकॉर्ड हमें यहाँ पे शो कर, तो देखो 401 के जिनके रिकॉर्ड्स है वो भी शो कर रहा है वो, और जिनके 401 से ज़्यादा है उनके भी वो शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो हम फिर से फिल्ट्रेशन लगा लेते हैं। यहाँ पे फिर से एक कमांड है, हम लोग जाएंगे कस्टम फिल्टर्स में, यहाँ पे अब हम सेट करेंगे इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इज लेस दैन या फिर इज लेस दैन और इक्वल टू। हम यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस चूज कर सकते हैं फॉर व्हाट, फॉर डूइंग द कस्टम ऑटो फिल्टर। ठीक है, अब कस्टम ऑटो फिल्टर निकालना कैसे है, मैंने जैसे बताया था, जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कोई एक फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। सपोज हमने सिर्फ इतने रिकॉर्ड्स रखे हैं, सिर्फ इतने ही वो बताएगा। एक फिल्टर अप्लाई हो चुका है, अब रिमूव कैसे करना है फिल्टर, सिंपल है। डेटा टैब में जाना है, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन ग्रुप में आना है और फिल्टर बटन पे क्लिक कर देना है, जो सिलेक्टेड है उसको अनसिलेक्ट कर देना है। आपका फिल्टर निकल जाएगा, आपका सारा डेटा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज एडवांस्ड फिल्टर। ठीक है, इसके बाद का जो फिल्टर है वो है एडवांस्ड फिल्टर। एडवांस्ड फिल्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो मैंने हमारा जो स्टार्टिंग से हम लोग जो टेबल यूज़ कर रहे थे उसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ऐड किया है फेवरेट सब्जेक्ट एंड सिटी। ठीक है, और नीचे मैंने यहाँ पे कुछ ये भी लिखा हुआ है, फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स इंग्लिश सिटी। ये क्यों लिखा है, सो मैं आपको बताता हूँ। एडवांस फिल्टर में आपको क्या करना है, एडवांस फिल्टर में आपका रिकॉर्ड आपकी इस टेबल
के अलावा अपने इस एक्सेल शीट में किसी और जगह पे भी शो कर सकते हो, वो भी कमांड देके। ठीक है, आपको क्या शो करना है वो देखिए। अभी सपोज मुझे मेरे इस पूरे टेबल में से मुझे शो करना है जिन बच्चों के फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स एंड इंग्लिश है। ठीक है, जिन बच्चों के फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स एंड इंग्लिश है मुझे वो शो करना है, और उनकी सिटी क्या है वो भी शो होनी चाहिए, उनका पूरा इंफॉर्मेशन शो होना चाहिए। बट स्पेसिफिकेशन क्या है कि उनका मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट फेवरेट होना चाहिए। ठीक है, और अब वो कैसे करना है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज गो इन द डेटा टैब, गो इन द सॉर्ट एंड फिल्टर, और वहाँ पे एक एडवांस नाम का ऑप्शन रहेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे यू विल गेट वन पॉपअप विंडो लाइक दिस। यहाँ से मैं कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने जो ऑलरेडी यूज़ की थी मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे लिस्ट रेंज है, मीन्स यहाँ पे देखो पहले ऑप्शन क्या था, जब आप ये ओपन करोगे आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड मिलेगा फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, मतलब जो लिस्ट है जो आपका टेबल है इसी में वो अपडेट होके मिलेगा। आप जो सॉर्ट कर रहे हो जिस मेथड से, जो कमांड आप दोगे उसके हिसाब से वो यही सॉर्ट करके बताएगा इसी टेबल में। बट हम सिलेक्ट करेंगे सेकेंड ऑप्शन, कॉपी टू अनदर लोकेशन। ठीक है, इसे दूसरे लोकेशन पे कैसे शो करें, अब वो कैसे करना है। फर्स्ट लिस्ट रेंज यहाँ पे आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो या फिर शॉर्टकट है, सिंपली आपका टेबल पूरा जो है वो सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये आपका टेबल सिलेक्ट हो गया जिसमें आपकी लिस्ट रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, मीन्स हमारा रोल नंबर का फर्स्ट सेल से लेके तो हमारे सिटी के लास्ट नेम तक। ठीक है, नेक्स्ट इज क्राइटेरिया रेंज, आपको किस क्राइटेरिया में, ठीक है, आपकी कमांड क्या है, आपको किस क्राइटेरिया में आपका जो डेटा है वो सॉर्ट होना चाहिए। तो मेरा डेटा सॉर्ट होना चाहिए फेवरेट सब्जेक्ट के हिसाब से, और फेवरेट सब्जेक्ट में उन बच्चों के रहने चाहिए मैथ्स एंड इंग्लिश। ठीक है, उनका सिटी वगैरह भी यहाँ पे शो होना चाहिए। मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया रेंज भी मेरा सिलेक्ट हो गया सेकंड ऑप्शन में। नाउ थर्ड, कॉपी टू, कॉपी कहाँ करना है। सो नॉर्मली कहीं भी किसी भी एक प्लेस पे आप सिलेक्ट कर लीजिए कोई भी एक सेल, और वहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में आपका वो उस सेल का जो लोकेशन है वो बराबर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब आपको करना है ओके बटन पे क्लिक, और जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करोगे जिनके सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स एंड इंग्लिश थे बराबर ओनली वो ही उन्हीं बच्चों का यहाँ पे डेटा शो होगा। ठीक है, सो ये था हमारा एडवांस्ड फिल्टर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में हमारे ओनली 2 पॉइंट बचते हैं हमारे इस लेसन में से। एक है हमारा डेटा वैलिडेशन, एक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, सो सारा अगर एक ही दिन में ले लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे आज रुक जाते हैं। ठीक है, अगर आज के किसी पॉइंट में किसी को कुछ डाउट है सो यू कैन राइट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ओके, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने पहले पढ़ा सॉर्टिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने सॉर्टिंग पढ़ा। सॉर्टिंग के बाद हमने पढ़ा फिल्टरिंग डेटा, एंड फिल्टरिंग डेटा के बाद हमने पढ़ा कस्टम ऑटो फिल्टर। कस्टम ऑटो फिल्टर के बाद हमने पढ़ा रिमूविंग ऑटो फिल्टर, जो फिल्टर्स हम लगाते हैं उसको रिमूव कैसे करना है। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा आज का एडवांस्ड फिल्टर। ठीक है, सो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए हम यहीं पे रुक जाते हैं, और अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, सो हरि ओम।